ارتضیٰ آج یونی دیر سے آیا تھا۔ ایک کلاس ہو چکی تھی، دوسری کلاس مشال کی تھی، جو کہ ہونے میں صرف 3 منٹ باقی تھے۔ ارتضیٰ جلدی سے گاڑی سے اترا، ارادہ کلاس میں جانے کا تھا۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ اب کلاس روم میں آیا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کلاس میں مشال تو کیا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے کلائی پہ پہنی واچ پر ٹائم دیکھا۔ اب 3 منٹ گزر گئے تھے۔ واچ پر اس وقت 11:30 ہو چکے تھے۔ کلاس کا ٹائم تو یہی تھا، مگر سب کہاں تھے؟ اس نے سوچا، پھر باہر نکل آیا۔ اپنے ارد گرد دیکھا کہ شاید جگو نظر آ جائے، وہی کچھ بتا دے، مگر آج تو ارتضیٰ کے منع کرنے پر وہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کو بھی آج ہی میری بات ماننی تھی۔ ارتضیٰ نے دل میں جگو کو کوسا اور پھر اسامہ کے آفس آ گیا۔ اسامہ نے ارتضیٰ کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ صاف لکھا تھا کہ موسم خراب ہے، تھوڑی دیر بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کی امید کی جا سکتی تھی۔ جی سر، کیا حکم ہے غلام کے لیے؟ اب کس کی شامت آئی ہے؟ کس کو یونیورسٹی سے نکالنا ہے؟ اسامہ شرارت سے بولا۔ ارتضیٰ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں مہرو بھابھی کو تمہاری شکایت کروں تو میرے سوال کا جواب شرافت سے دو۔ جی جی بادشاہ سلامت، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسامہ پھر سے شرارت سے بولا۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مہرو بھابھی نے آج مجھے بلایا ہے لنچ پر، میں وہیں جا رہا ہوں۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا۔ اوے رک یار بلیک میلر، بتا کیا بات ہے؟ اسامہ جلدی سے اٹھ کر ارتضیٰ کو روکتے ہوئے بولا۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ ارتضیٰ مزے سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر گویا ہوا۔ یہ پروفیسر مشال بہت چھٹیاں کرتی ہے، اتنی زیادہ چھٹیاں کیوں دیتا ہے اسے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسے یونیورسٹی سے نکال دے۔ یار تیری سوئی ابھی تک اسی بیچاری پر اٹکی ہوئی ہے، تو معاف کر دے بیچاری کو۔ اسامہ سنجیدہ ہوا۔ معاف کیا، مگر اب اسے کوئی چھٹی نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھنا اسامہ شاہ۔ ارتضیٰ کی بات پر اسامہ کو حیرت ہوئی۔ اسے کب سے ان سب باتوں سے فرق پڑنے لگا تھا۔ یار ارتضیٰ، آج اس کی منگنی ہے، اب کیا منگنی والے دن بھی یوں نہیں آئے وہ؟ اسامہ کے جواب پر وہ ارتضیٰ ساکت رہ گیا۔ چہرے پر ایک دم پریشانی اور حیرت کے تاثرات چھا گئے۔ کچھ پل وہ کچھ نہ بول سکا۔ ارتضیٰ کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کچھ لوگ آپ کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو اپنے دل کے سب سے اونچے مقام پر بٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ آپ کے دل کی سلطنت پر قبضہ جما کر تا قیامت آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، اور آپ ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آپ خود اپنے دل کے تسکین کے لیے یہ اختیار ان کو سونپ دیتے ہیں، کیونکہ دل ہمیشہ آپ سے وہی کام کرواتا ہے جس میں اسے تسکین ملتی ہے۔ دل آپ کو دماغ کی بات سننے کا موقع کم ہی فراہم کرتا ہے، اور اگر معاملہ محبت کا ہو تو دل و دماغ کی جنگ میں دل دماغ پر سبقت لے جاتا ہے۔ محبت کے معاملے میں دل دماغ کو پہلے ہی قدم پر، پہلی سیڑھی پر منہ کے بل گرا کر ڈھیر کر دیتا ہے، کیونکہ محبت دل کا معاملہ ہے اور دل محبت کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا۔ ارتضیٰ کا دل بھی بے قابو ہو رہا تھا، اور دل کی داستان اس کے چہرے پر رقم ہو رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو دنیا ہی لٹ گئی ہو، جینے کا کوئی مقصد ہی نہ بچا ہو، جیسے کسی نے تپتی دھوپ میں صحرا میں اکیلا کھڑا کر دیا ہو، اور آس پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی چرند پرند بھی نہ ہو۔ دور دراز تک کسی کنویں تک کا نام و نشان نہ ہو جس کی مدد سے پیاس بجھائی جا سکے، تپتی دھوپ میں سایہ میسر نہ ہو۔ اسامہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اسے خود بتایا ہے کیا؟ تھوڑی دیر بعد ارتضیٰ نے پوچھا۔ آواز اتنی کم تھی کہ اسامہ کو مشکل سے سنائی دی۔ ہاں یار، اس نے آن لائن اپلائی کیا تھا، ریزن میں لکھا تھا کہ اس کی منگنی ہے۔ ارتضیٰ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ڈاکٹر پر غصہ آیا، اس کی ٹانگیں توڑنی ہی پڑیں گی۔ ارتضیٰ نے دل میں سوچا، اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اسامہ سوچ کر رہ گیا۔ شام میں مرتضیٰ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ صبح سے وہ فارغ تھا، اب خود ہی آ کر اپنے لیے چائے بنا رہا تھا کہ نعیم صاحب کی گاڑی پوش میں آ رکی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز مرتضیٰ کے کانوں میں پڑی۔ منگو، مرتضیٰ کو بلا کر لاؤ۔ نعیم صاحب کی روبدار آواز سن کر مرتضیٰ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر زیبا بیگم کے ساتھ ماہم بیٹھی تھی، سادہ سی شلوار قمیض پہنے، خود کو چادر سے کور کیا ہوا تھا، جبکہ نعیم صاحب قریب ہی کھڑے اوپر کی جانب دیکھ کر مرتضیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا، اب بولنے کی ہمت بالکل نہیں تھی مرتضیٰ میں۔ ماہم اور مرتضیٰ ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ کو آج وہ بہت اداس لگی تھی، چہرہ بے رونق تھا۔ ایک ہی دن میں وہ صدیوں کی بیمار معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ موت کے منہ سے واپس زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ مرتضیٰ کو ہمدردی ہوئی۔ ماہم ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اسے پورے 16 گھنٹوں کے بعد دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے ابھی ہاسپٹل میں ہی رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ ضد کر کے آ گئی۔ وہ سنگ دل انسان اپنی پوری وجاہت سمیت ہمیشہ کی طرح تیار سامنے کھڑا تھا، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، جس سے اس کے بازو پر موجود ہلکے ہلکے بھورے بال نظر آ رہے تھے۔
उसने पीछे 16 घंटों से उसे नहीं देखा था और अब सिर्फ 16 सेकंड में उसका पूरा जायज़ा ले चुकी थी। उसने पिछले कुछ घंटे होश में आने के बाद से मुर्तज़ा को देखने की आरज़ू की थी। होश में आने के बाद उसने मुर्तज़ा को वहाँ नहीं देखा। आखिरी बार उसने मुर्तज़ा को कहते सुना था कि माँ हम सॉरी। फिर अब वो उसे देख रही थी। ज़ेबा बेगम भी मुर्तज़ा को देख रही थी, जो कि खामोशी से खड़ा था। ज़ेबा बेगम की नज़रों के ताक़ुब में नईम साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो खड़ा था। मुर्तज़ा को देखकर नईम साहब को शदीद गुस्सा आया। दिल किया कि 2-4 और लगाते मुर्तज़ा को। फिर कदरे बुलंद आवाज़ में बोले, "अपनी बीवी को अपने रूम में ले जाओ। और अब कम से कम अगले 10 दिन तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब फ्लैट में जाने का सोचना भी मत। जितना हो सके मेरी नज़रों से दूर रहना।" मुर्तज़ा जो नज़रें झुकाकर खड़ा था, लफ्ज़ बीवी पर हैरत से नईम साहब को देखा। नईम साहब उसका सवाल समझते हुए बोले, "ऐसे क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल में तुमने ही लिखवाया था कि ये बीवी है तुम्हारी।" वो इतना कहकर बाहर चले गए। मंगू भी उनके पीछे चला आया। मुर्तज़ा जल्दी से ज़ेबा बेगम के पास आया, उनके गले लगना चाहा, "मिस यू मॉम।" जबकि ज़ेबा बेगम पीछे हो गई। "मुर्तज़ा मुझसे बात मत करो तुम, माँ हमको अपने रूम में ले जाओ।" वो इतना कहकर चली गई। मगर मॉम, वो बिना सुने चली गई। वो नाराज़ थी मुर्तज़ा से। वो हमेशा मुर्तज़ा को चीकू कहती थी प्यार से, जब नाराज़ होती थी तब ही उसका नाम लेती थी। मुर्तज़ा को महम पर गुस्सा आया। ये सब उसकी वजह से हो रहा था। जब से वो पाकिस्तान आया था उसी दिन से यही हाल था। उसके मॉम डैड की ज़ुबान पर एक ही नाम था, माहम। माहम से मंगनी क्यों तोड़ी? माहम, तुम माहम से शादी करोगे और सियासत में आओगे, बस यही कुछ था। इन सब चीज़ों से मुर्तज़ा को कोई लगाव ना था। फिर थोड़ी देर बाद बोला बोला अब लहज़ा कदरे नरम था, अब वो ठीक नहीं थी। इसलिए मुर्तज़ा ने उससे बाद में सारी बातों का हिसाब लेने का सोचा और कहा, "मेरे साथ आओ।" माहम ने मुर्तज़ा की तकलीद की। और अल्लाह शायद अपने हिसाब में हमें माफ़ कर दे, मगर इंसान अपने हिसाब में माफ़ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है, रहम करने वाला और बख्शने वाला है, मगर इंसान नाप तोल कर पूरा-पूरा हिसाब लेता है। अल्लाह ताला के हिसाब में अगर बुराइयों का पलड़ा भारी हो, नेकी सिर्फ़ एक हो, अगर अल्लाह को वो नेकी पसंद आ जाए तो वो बख्श देता है, जन्नत की नवीद सुना देता है। मगर इंसानों का मामला उसके बरक्स है, इंसानों के हिसाब में नेकियों का पलड़ा जितना मर्ज़ी भारी हो और अगर एक भी बुराई निकल आए तो ये मुनसिफ़ सारी नेकियों को भूलकर उस एक बुराई को जवाज़ बनाकर आपको जहन्नुम की तरफ धकेल देता है। आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देता है और आपके सारे एहसानात पल में भूल जाता है। मगर इस इंसान को हिसाब लेने का इख्तियार सिर्फ़ इस दुनिया में है। जबकि आखिरत में अल्लाह ताला खुद सारे हिसाब खुद लेगा और इंसान को हिसाब लेने का इख्तियार अल्लाह ताला ने हरगिज़ नहीं दिया, बल्कि ये बादशाहत उसने अपने लिए खुद कायम की है। उसने खुद ही अपने आप को खुदा समझ रखा है और जो लोग दूसरों से हिसाब लेते हैं, क़यामत में अल्लाह उनका हिसाब करेगा। और अल्लाह ताला का हिसाब सख्त होगा। मुर्तज़ा अब न जाने क्या हिसाब लेने वाला था वहाँ हमसे, ये तो फ़ैसला वक़्त ने करना था और वक़्त बहुत ज़ालिम है, वक़्त बहुत कुछ सिखा देता है। और कहा, "मेरे साथ आओ।" माँ हमने उसकी तक़लीद की। मुर्तज़ा उसे रूम तक छोड़कर बाहर से ही वापस पलट गया। उन दोनों की कोई बात ना हो सकी। माँ मुर्तज़ा के रूम में आई, रूम का जायज़ा लिया। वो ये रूम पहली बार देख रही थी। रूम में हर चीज़ तरतीब से रखी गई थी। रूम को देखकर पता चलता था कि इसमें रहने वाला इंसान किस कदर नफ़ासत पसंद है। उसे पूरे रूम से मुर्तज़ा के कलोन की महक महसूस हो रही थी। वो बेड पर आई, एक तरफ लेटकर अपने पास मुर्तज़ा को तसव्वुर करने लगी। कुछ ही पल में नींद की वादियों में गुम हो गई। शाम को 6 बजे उसकी आँख खुली। उसने टाइम देखा तो जल्दी से उठी। उसे याद आया आज तो उसने सदका ही नहीं दिया था। वो उसी हुलिये में बाहर आई, सादा-सी शलवार कमीज़ पर अब सलवटें पड़ चुकी थीं। उसी तरह चादर को अपने गिर्द अच्छे से लपेटकर साथ वाले रूम में गई, जिसमें वो पहले यहाँ रह रही थी। अपना बैग उठाया, फिर नीचे आई। लाउंज में कोई नहीं था। जल्दी से बाहर आई, गाड़ी में बैठी और घर के गेट को अबूर कर गई। गाड़ी कदरे तेज़ स्पीड में रखे हुए वो अब दरबार से कुछ फासले पर थी। गाड़ी रोकी और बैग उठाकर बाहर आई। अपने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया। चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी। निगाहें मुसलसल किसी को ढूँढ रही थीं। फिर वो चलकर थोड़ा आगे आई। दूर खड़ा कोई इंसान ये मंज़र देख रहा था। थोड़ा आगे आकर उसे वो फ़कीर नज़र आया। अब वो फ़कीर दरबार से 10 कदम के फ़ासले पर था। बस अंदर जा रहा था। वहाँ हमने देख लिया। फिर बिना सोचे-समझे वो वहाँ से भागी। बैग को कंधे पर लटकाए वो तेज़ रफ़्तारी से अब कुछ ही पल में ऐन उसी वक़्त जब वो फ़कीर दरबार में दाखिल होने ही वाला था कि वो वहाँ पहुँच गई और फूली हुई साँसों में फ़कीर को आवाज़ दी। "बाबा!" फ़कीर ने पलट कर देखा। वो अब साँसें बहाल कर रही थी। फ़कीर की आवाज़ ने उसे मुतवज्जे किया। "इश्क मजाज़ी ईमान का दुश्मन है। इश्क मजाज़ी अगर इश्क हकीकी से ज़्यादा तारी हो जाए तो आप ईमान से गए। इश्क मजाज़ी दीमक की तरह ईमान को खा जाता है। ईमान ना हो तो मजाज़ी इश्क राहत नहीं देता। ईमान कायम हो तो मजाज़ी इश्क आपके कदमों में ढेर हो जाता है।" वो इतना कहकर दरबार के अंदर चले गए। माहम आँखों में बेयकीनी लिए उनकी पुश्त को देख रही थी। उस फ़कीर के अल्फ़ाज़ माहम के दिल को बेचैन कर गए। उसके कदम खुद ब खुद दरबार के अंदर बढ़ने लगे। वो जाना नहीं चाहती थी मगर चली गई। अब वो दरबार के सहन में कबूतरों को दाना डाल रहे थे। उनके इर्द-गिर्द बहुत सारे कबूतरों का झुरमुट था। बहुत सारे कबूतर वहाँ जमा हो रहे थे। माहम उनके पीछे कुछ फ़ासले पर आकर खड़ी हो गई। उनके बाएँ हाथ में एक कटोरा था।
जिसमें बाजरे के दाने थे, जबकि वो दाएँ हाथ से दाना डाल रहे थे। वो बहुत तवज्जो से उनकी कार्रवाई देख रही थी, कैसे सारे कबूतर उनकी तरफ भागे चले आए थे। बिल्कुल इंसान भी इसी तरह है, जहाँ से उसकी गर्ज़ पूरी होती है, वो वहाँ भागा चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माहम मुर्तज़ा के पीछे अपने दिल की तस्कीन के लिए भाग रही थी। वो अब दाना डालकर माहम की तरफ मुतवज्जे हुए। महबूब महबूब ही रहे तो इसी में आपकी आफ़ियत है। महबूब का दर्जा हर चीज़ से ज़्यादा अव्वल है, मगर अल्लाह ताला और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद महबूब को पूजा नहीं जाता बच्चे, इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं, हराम चीज़ों की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हैं। माहम की आँख से एक आंसू नीचे फर्श पर गिरा। वो कितना गलत कर चुकी थी, उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। वो मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किए खड़ी थी। उसे लगा था कि किसी ने उसे लाकर तपती धूप में खड़ा कर दिया हो और कोड़े मारे जा रहे हों। वो क्या करने जा रही थी? हराम मौत मरने जा रही थी। उसे इस वक़्त खुद से बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई। कबूतर अभी दाना खा रहे थे। माहम ने ये मंज़र धुंधला-सा देखा, फिर हाथ की पुश्त से आंसू साफ़ किए। वो फ़कीर अब वहाँ नहीं था। कबूतर अब भी दाना खा रहे थे। इतने में एक आदमी ने आकर माहम के आगे हाथ फैलाया। बाबा ने कहा है कि आप आज मुझे सदका दे दें। माहम ने अपने बैग से हज़ार के चंद नोट निकाल कर उस आदमी के हाथ पे रखे और वहाँ से निकल आई। यूनिवर्सिटी से निकलकर इर्तिज़ा ने गाड़ी कुछ दूर आकर एक घर से थोड़ा दूर रोकी। फ़ोन निकालकर नंबर डायल किया। फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ मौजूद इंसान फ़ोन उठाने का एहसान शायद नहीं करना चाहता था। इर्तिज़ा ने फिर से कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर मुसलसल 13 दफ़ा कॉल की गई। इर्तिज़ा को अब गुस्सा आ रहा था। इर्तिज़ा को अपने डैड और मुर्तज़ा की याद आई। इर्तिज़ा भी तो उनके साथ यही करता था। वो तो फ़ोन भी ऑफ ही रखता था। अब उसे एहसास हुआ। उसने गुस्से में हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर से स्टीयरिंग पर मारा। मिशाल और साइम घर से निकले थे। गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। वो दोनों इस वक़्त फुल तैयारी में थे। ऐसे मालूम हो रहा था कि किसी शादी में या फिर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना थी। मिशाल फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। साइम भी जो ही आकर बैठा, अभी चाबी इग्निशन में लगाई ही थी कि उसे याद आया कि वो अपना मोबाइल रूम में ही भूल आया था। यार, मिशाल, मैं अपना मोबाइल लेकर आया। वो इतना कहकर गाड़ी से उतरा और जल्दी से घर के अंदर चला गया। मिशाल अब मज़े से अपने मोबाइल स्क्रीन से अपने बाल देखकर सेट कर रही थी। वो इस सब में मगन थी, मगर के गाड़ी स्टार्ट होके वो जल्दी से वहाँ से भागने लगी। विशाल अपने ध्यान में थी। बदतमीज़, आहिस्ता चलाओ, क्या है? वो गिरते-गिरते बची, मगर जब नज़र साथ बैठे इंसान पर पड़ी, तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। तुम कौन हो? तुम गाड़ी रोको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी अब पहले से ज़्यादा तेज़ स्पीड से भाग रही थी। साथ ही एक इंसान ब्लैक मास्क से चेहरा छुपाए खुद को मुकम्मल कवर किया हुआ था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको। जब उस इंसान पर कोई असर न हुआ, इसी तरह फुल स्पीड में आँखों में हवगे लिए ड्राइव करते हुए मिशाल को देख रहा था, तो मिशाल ने ज़ोर से हाथों के मुक्के बनाकर उसके बाजू में मारना शुरू कर दिए। रोको, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? साइम, साइम कहाँ है? रोको गाड़ी, बदतमीज़ इंसान। विशाल अब भी उसे मार रही थी, मगर सामने मौजूद शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। विशाल की इस तरह ज़ोर-ज़ोर से मुक्के मारने से गाड़ी का एक्सीडेंट होते-होते बचा। साथ बैठे इंसान को उस लड़की की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने विशाल का बाजू पकड़ के ज़ोर से उसे खुद से दूर झटका, फिर गुस्से में बोला, "खबरदार लड़की, अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो खामोश होके बैठ जाओ।" जबकि मिशाल तो उसकी आवाज़ सुन के साकित रह गई। ये शख्स, वो पल भर में इस शख्स की आवाज़ को पहचान गई थी। वो लाखों में भी इस शख्स की आवाज़ को पहचान सकती थी। वो शख्स आजकल वैसे भी उसकी आवाज़ों पर सवार था। विशाल टीवी लाउंज में बैठी चैनल सर्च कर रही थी। नीचे अहमर बैठा खिलौनों का ढेर लगाए खेलने में मगन था। फिर उसे न्यूज़ चैनल पर रोक दिया, जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन के बारे में न्यूज़ चल रही थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन अपना अपना मंशूर पेश करने में मसरूफ़ थे। कमाल है, बड़ी जल्दी है इन लोगों को। अभी तो इलेक्शन में 5 माह बाकी हैं। कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने हमारे मुल्क में। वो साथ-साथ अपना अपना तबसरा भी कर रही थी, इतने में साइम पास आकर बैठा। तो तुम खुद हुकूमत में आकर सबको सीधा कर देना। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के प्रोफ़ेशन वाले बंदे से हो रही है। वैसे भी तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये पॉलिटिक्स। यार मिशाल, वो तुम क्या कहा करती थी? साइम ने सोचने की एक्टिंग की। हाँ, याद आया। भाड़ में जाए डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। कियानी लव्स पॉलिटिक्स और पुलिस। साइम का लहजा साफ मजाक उड़ाने वाला था। मिशाल ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। उसका इरादा उठकर जाने का था जब अहमद पास आकर मिशाल की गोद में बैठकर बोला। मिशाल ने उससे प्यार किया। क्या हुआ मेरे बेटे को? मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोला। क्यों? मेरा बच्चा क्यों नाराज़ है? अहमद ने फिर से साइम की तरफ देखा। आप दोनों से नाराज़ हूँ मैं, उसने फिर से उसी अंदाज में कहा। साइम ने अहमद को अपनी गोद में उठा लिया। ओए, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं कौन सा रुखसत हो रहा हूँ तेरी पुप्पू की तरह? तेरा मामू तो तेरे लिए प्यारी सी मुमानी लाएगा। साइम ने जानबूझकर किचन की तरफ देखकर जरा ऊंची आवाज में कहा।
کچن میں ممتاز بیگم اور زارا کام کر رہی تھی۔ زارا آج صبح ہی آئی تھی مشال کی شادی کا سن کر، اب وہ شادی تک یہیں تھی۔ ممتاز بیگم اپنے بیٹے کی بات پر مسکرائیں، جبکہ مشال کو اپنی شادی کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا سائم پر۔ کیا ضرورت تھی اسے مشال کے پیچھے آنے کی؟ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب احمد نے کہا، آپ نے مجھے پوئم بھی نہیں سنائی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میرا پتر، آج تمہارا ماموں تمہیں خود نہ صرف پوئم سنائے گا بلکہ آج پرفارمنس بھی کر کے دکھائے گا، جیسے پہلے کرتے تھے ہم تینوں۔ اتنے میں سائم نے ساتھ مشال کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سچی ماموں؟ جیسے پہلے آپ دونوں نے مجھے پوئم پر پرفارم کر کے دکھائی تھی۔ وہ خوش ہوا۔ جی میرا بچہ۔ سائم نے احمد کو صوفے پر بٹھایا، اپنے موبائل سے یوٹیوب پر سرچ کیا کچھ، پھر موبائل احمد کو دیا۔ جب میں کہوں تو بیٹا ویڈیو پلے کر دینا۔ اوکے ماموں، سائم خوش ہوا۔ چل آجا میری مورنی، تیرا مور بہت جلد تجھے لینے آ رہا ہے۔ سائم نے بازو سے پکڑ کر مشال کو اٹھایا۔ سائم، نہیں پلیز چھوڑو، میرا موڈ نہیں ہے، وہ اکتا کر بولی۔ کیوں موڈ نہیں ہے؟ اب تو تمہاری شادی بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی تمہاری پسند کے پروفیشن والے بندے سے۔ سائم، میرا دماغ خراب مت کرو۔ مشال کو غصہ آیا۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اور ریفریش کریں، تھوڑا موڈ فریش کریں۔ سائم نے کہتے ہی اسے گھمایا۔ اوکے اوکے، چلو احمد، تھوڑا انجوائے کروا دو تمہیں، چلو چلاؤ پوئم۔ مشال کے کہنے پر پوئم کی آواز گونجی۔ نانی تیری مورنی کو موڑ لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ سائم اور مشال احمد کے سامنے کھڑے پاؤں سے آگے پیچھے سٹیپس لے رہے تھے، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بھی دائیں سے بائیں جانب موو کروا رہے تھے، اس ویڈیو کی طرح پرفارمنس دے رہے تھے، جبکہ احمد اب ساتھ ساتھ تالیاں بجا کر ان کو داد دے رہا تھا۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ خود بھی گنگنا رہے تھے۔ نانی تیری مورنی کو موڑ لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ اب ان کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ کھا کے پی کے چور بیٹھے ریل میں، ان چوروں کا ڈبہ کٹ کے پہنچا سیدھا جیل میں۔ نانی تیری مورنی کو موڑ لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ شہناز بیگم بھی اب کچن میں آ گئیں۔ وہ تینوں مسکرا رہی تھیں۔ زارا کچن کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کتنی رونق لگا رکھی ہے نا دونوں نے۔ میں تو وشال کو کبھی اس گھر سے جانے نہ دیتی، اپنے سائم سے ہی شادی کروا دیتی، مگر جو اللہ کو منظور۔ ممتاز بیگم کے کہنے پر شہناز بیگم نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ اگر وہ دونوں بہن بھائی نہ ہوتے تو ساری پریشانی ہی ختم ہو جانی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آپا۔ ان چوروں کی خوب خبر لی موٹے تھانے دار نے، موروں کو بھی خوب نچایا جنگل کے سرکار نے۔ نانی تیری مورنی کو موڑ لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ وہ دونوں اب بھی سٹیپس لے رہے تھے جب پاس سے گزرتی ہوئی منال کو سائم نے پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا۔ احمد بھی اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہو کر نیچے اتر آیا۔ اس نے بھی ان کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ممتاز اور شہناز بیگم وہاں آ کر بیٹھ گئیں۔ اچھی نانی، پیاری نانی، رسا رسی چھوڑ دے، جلدی سے ایک پیسہ دے دیں، تو کنجوسی چھوڑ دے۔ اب وہ تینوں ممتاز بیگم کے آگے پیچھے ان کو گھیرے سے ان سے پیسے مانگ رہے تھے۔ نانی تیری مورنی کو مور لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ ممتاز بیگم کو ان لوگوں نے گھیرے رکھا تھا۔ سائم کی نظر سامنے کچن کے دروازے پر کھڑی زارا پر گئی تو اسے بھی پکڑ کر لے آیا۔ اتنے میں پوئم کی آواز بند ہو گئی۔ سب اب کہہ لگا رہے تھے۔ مشال سامنے والے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئی، اب لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ چلو اب میں دوسری پوئم لگاتا ہوں، مٹھو والی۔ اب میری اور زارا کی پرفارمنس ہوگی۔ جبکہ مٹھو کا نام سن کر مشال نے اپنے پاؤں اوپر کر لیے تاکہ کہیں سے وہ آ ہی نہ جائے۔ اور سچ میں وہ اب اوپر سے نیچے آ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ چلو آؤ زارا، ہم دونوں ڈانس کرتے ہیں۔ سائم نے زارا کا ہاتھ پکڑا جبکہ زارا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں سائم، مجھے تو بازی رکھو، یہ تم دونوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں ایسی میراثیوں والے کام نہیں کرتی۔ زارا کی بات پر سب نے کہکا لگایا۔ سائم اور مشال کو تو آگ لگ گئی تھی۔ اچھا تو زارا تم کون سا میلاد پڑھتی ہو؟ مشال کے جواب پر زارا شرمندہ ہوئی۔ اتنے میں زارا اور سائم کا لاڈلا مٹھو مشال کے صوفے کے پاس آیا اور اپنی چونچ سے صوفے پر وار کرنے لگا۔ وہ بہت غصے میں تھا، ساتھ ساتھ مشال کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید اسے اپنی مٹھو والی پوئم نہ لگانے پر اعتراض تھا۔ صرف اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مشال کا نام بگاڑ رہا تھا، شالو شالو شالو۔ مشال کو بہت غصہ آیا۔ اوئے چپ کر، میرے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت، کسی دن میں تمہیں کسی طوطی کے ساتھ رخصت کر دوں گی اس گھر سے۔ مشال کی بات پر سب کا کہکا بلند ہوا۔ میرا طوطا نہیں بلکہ تم رخصت ہونے والی ہو اس گھر سے۔ سائم نے پھر سے اسے تنگ کرنا چاہا۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، تم لوگوں کے طوطے میں نے مجھے سکون سے رہنے ہی نہیں دیتے اس گھر میں، جیسے گھر نہ ہو چڑیا گھر ہوا۔ وہ اتنا کہہ کر صوفے پر سے دوسری طرف کود کر بھاگتی ہوئی اپنے روم میں گھس گئی۔ پیچھے سب مسکرانے لگے۔ ماہم صبح آفس آ گئی۔ اب وہ تو پہلے سے تھوڑا بہتر تھی۔ مرتضیٰ اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کو وہ روم میں ہی نہیں آیا تھا، صبح بھی وہ ناشتے پر نہیں تھا۔ آفس آ کر اسے سائم کہیں نظر نہ آیا۔ اسے پوچھا تو پتہ چلا کہ سائم نے جاب چھوڑ دی ہے۔ اس نے کال کر کے سائم کو اپنے آفس میں بلایا۔ اب وہ ماہم کے سامنے بیٹھا مزے سے چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماہم اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اسے چائے کی پیالی خالی کر کے رکھی۔ اب بتاؤ کیوں چھوڑی جاب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ سائم بولا۔ مینیجر صاحب نے۔ نہیں غلط بات ہے، جھوٹ ہے، یہ الزام ہے مجھ معصوم پر، مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے، سائم نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ سائم سیدھی طرح بتاؤ۔ ماہم کو الجھن ہوئی۔ مجھے نکالا گیا ہے۔
किसने निकाला? माहम को हैरत हुई। माहम के अलावा कौन निकाल सकता था उसे? तुम्हारे शोहर ने। पूछो उससे। क्यों निकाला मुझे? साइम ने दुहाई दी। व्हाट? मुर्तजा? मुर्तजा ने क्यों निकाला? हाँ, तुम्हारा महबूब शोहर। उसी ने मुझे कहा था कि अब तुम इस ऑफिस में मुझे नजर ना आओ। मगर क्यों? माहम की हैरत थी कि कम होने का नाम ही नहीं नहीं ले रही थी। यार, इन दोनों को मुझे देखकर इनसिक्योरिटी फील होती है। मुझे अपना रकीब समझते हैं ये दोनों। वो समझता है मैं तुम पर लाइन मारता हूँ। माहम धीरे से मुस्कुराई। क्या उसे तुम्हें खुद कहा है? उसे जानने का इश्तियाक हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें माहम? मेरी नौकरी चली गई और तुम्हें अपने महबूब के किस्सों से फुर्सत नहीं मिलती। साइम सीधी तरह बताओ। यार, उसे लगता है कि मैं क्या साइम क्या मैं लगा रखी है। माहम को उकताहट हुई। यार, वो माहम, अब तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारी तरह कितना मासूम हूँ, मगर तुम्हारा शोहर समझता है कि मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। उसने तुमसे ये सब कहा? पूछा गया। नहीं यार, कहा तो नहीं, मगर उसे तुम्हारी और मेरी दोस्ती पसंद नहीं है शायद। मैं बात करूंगी मुर्तजा से। तुम कल से ऑफिस आने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा नखरीला शोहर मान जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। अभी मैं चलता हूँ, बहुत से काम है मुझे। तुम लोगों की तरह मेरे बाप का अपना बिज़नेस नहीं है। वो कहकर चला गया। बदतमीज़ इंसान, ये कभी सुधर नहीं सकता। माहम सोचकर मुस्कुराई। साथ ही उसे साइम का मैसेज मिला। मिला, शाम को कॉफ़ी शॉप पर मिलो मुझे। ज़ारा। ज़ारा, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो मिशाल। ज़ारा इस वक्त ऊपर छत पर अपने मिट्ठू को चूरी डाल रही थी। मिशाल पास ही चेयर पर बैठी थी। यार ज़ारा, इतने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अभी तक औलाद नहीं हुई तुम्हारी। क्या तुम्हारी सास तुम्हें ताने नहीं देती? तुमने कभी कुछ बताया नहीं। मिशाल की बात पर एक पल के लिए ज़ारा के चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई। ज़ारा की पीठ थी मिशाल की तरफ, इसलिए मिशाल देख ना सकी। पता है विशाल, ससुराल में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। मगर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर छोटी छोटी बातों को दिल में रख कर एक दूसरे के लिए कीना, हसद और बुग़्ज़ रखा जाए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और पता है विशाल, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने खुद इसे अपने लिए मुश्किल बना रखा है। ज़िंदगी आसान है, हम इंसानों ने ज़िंदगी गुज़ारने के मुश्किल तरीके अपना रखे हैं। और जहाँ तक औलाद की बात रही, मेरी सास की भी ख़्वाहिश है कि उनके घर में से बच्चों के खेलने-कूदने की आवाज़ें आएँ, मगर जो अल्लाह को मंज़ूर। ज़ारा अब आकर सामने चेयर पर बैठ गई। मिशाल खामोशी से सब सुन रही थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो मिशाल? मेरी शादी हो रही है ज़ारा। तो क्या हुआ? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ज़ारा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझ में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो पता है, मैं अपने घरवालों के अलावा किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करती। मेरी तो दोस्त भी सिर्फ़ एक है। मैंने उससे भी कभी भी खुद बात नहीं की। वो खुद ही कभी-कभार कॉल कर लेती है। ज़ारा, सब कैसे हैंडल करूँगी मैं? मिशाल की बात पर ज़ारा मुस्कुराई। अच्छा, मगर तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ तो तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा होता है मिशाल। बल्कि तुम ऐसा करना, उसे अपना स्टूडेंट समझकर डील करना, ज़िंदगी आसान रहेगी। क्यों मिट्ठू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ज़ारा ने हल्की सी गर्दन मोड़कर मिट्ठू से तस्दीक चाही। ज़ारा की बात पर मिट्ठू ने भी अपनी ज़ुबान में बोलकर खुश होते हुए इस बात की तस्दीक की। मिट्ठू भी इस बात से महज़ूज़ हुआ था। तुम बहुत बदतमीज़ हो ज़ारा, तुम्हारा मिट्ठू भी बदतमीज़ है। तुमसे बात करना ही फ़ज़ूल है। वो मुँह बनाते हुए उठकर नीचे चली गई। नीचे चली गई। वो कॉफ़ी शॉप पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद माहम उसके साथ सामने आ बैठी। सॉरी साइम, मैं थोड़ा लेट हो गई। वो मुस्कुरा कर बोली। साइम उसे ही गौर से देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कॉफ़ी ऑर्डर करो। और हाँ, आज तुमने मुझे बुलवाया, खुद बुलवाया है, बिल तुम दोगे। मैं हरगिज़ बिल नहीं देने वाली। साइम गौर से उसे देख रहा था। वो अभी तक उसी सुबह वाले हुलिये में थी। ब्लैक जीन्स पर व्हाइट शर्ट पहने और ऊपर ब्लैक ही कोट था। बालों को हमेशा की तरह ऊंची पोनी में मुकीद कर रखा था। क्रिस्टल ग्रे आंखों में हल्की हल्की सुर्खी थी। उसके बाएं हाथ की कलाई पर वॉच थी, जिसके नीचे से हल्का सा निशान जो कि सुर्ख रंग का था नजर आ रहा था। साइम ने सुबह देख लिया था। इतने में साइम ने कॉफ़ी ऑर्डर की। अब फिर से माहम की तरफ मुतवज्जे हुआ। यार, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगी माहम? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो? साइम ने उसकी कलाई की तरफ देखा। तुम्हारी वॉच। वो इस वक्त संजीदा था। माहम मुस्कुराई। बस इतनी सी बात? ये लो। माहम ने अपना दायां हाथ वॉच की तरफ बढ़ाया ताकि उतारकर साइम को दे। फिर जब नज़र सुर्ख निशान पर गई तो वॉच उतारकर हाथ नीचे कर दिया, अपनी गोद में रख लिया और वॉच टेबल पर साइम के सामने रखी। ये लो। साइम ने वॉच उठा लिया, अब वॉच को देख रहा था। वैसे इतनी खतरनाक भी नहीं कि किसी को इतना गहरा जख्म दे सके ये बेचारी। तुम कहना क्या चाहते हो साइम? माहम को उलझन हुई। इतने में कॉफी भी आ गई। तुम हमेशा दाएं हाथ की कलाई पर वॉच पहनती हो माहम। तो तो ये कि आज क्यों दूसरी तरफ? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही यार, तुम कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। माहम ने कहकर एक सिप लिया। हाथ हाथ ऊपर करो। ये यार, लो, देख लो, मच्छर ने काट लिया था। माहम ने हाथ ऊपर किया। अच्छा, तुम्हारे घर मच्छर कहाँ से आ गए? मेरे ख्याल से इस मौसम में तो हम गरीबों के घर में भी मच्छर नहीं होते।
साइम, तुम कहना क्या चाहते हो? माहम बेजार हुई। वही जो तुम बताना नहीं चाहती। चलो अब सीधी तरह बताओ, मसला क्या है? वैसे तो मुझे कुछ कुछ अंदाजा पहले से है। साइम, तुम जानते तो हो मुझे एलर्जी है आम से। गलती से मैंगो आइसक्रीम खा ली थी थोड़ी सी, इसलिए बीमार हो गई थी, खारिश हो गई थी पूरी बॉडी पर, इसीलिए ये निशान बन गया। और ये गलती कैसे हो गई तुमसे? क्या तुम अंधी थी जो तुम्हें नजर नहीं आई कि वो मैंगो आइसक्रीम है? अब वो जरा गुस्से में बोला। साइम, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माहम अब हैरान हुई। तो और कैसे बात करूं माहम, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी, और याद है तुम्हें हम पहली बार कब मिले थे, हमारी दोस्ती कब हुई थी? वो अब भी गुस्से में था। साइम, मुझे सब पता है यार। तो फिर क्यों छुपा रही हो आज? आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। माहम, पहली बार यूनी में तुम एक दफा ऐसे ही बीमार हो गई थी। तब तुमने गलती से फ्रूट ट्राइफल खाया था जिसमें आम था, वो भी सिर्फ एक चम्मच। तुम कैंटीन में बिल्कुल मेरे सामने वाली टेबल पर बैठी थी। सिर्फ एक चम्मच लेने पर ही तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, और मैंने ही तुम्हारी मदद की थी उस वक्त, और अब तुम कह रही हो कि तुमने आइसक्रीम खा ली। जानबूझकर ऐसा कौन करता है माहम? वो अब पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में बोला। वॉच पर गिरफ्त मजबूत थी। कुछ लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। साइम को एहसास हुआ, फिर कदरे धीमी आवाज में बोला, अगर उस तुम्हारे शोहर ने कुछ कहा है तुम्हें, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्या समझता है खुद को, जैसे किसी सल्तनत का शहजादा हो। साइम की हरी बात पर वो मुस्कुराई। शहजादा तो है मेरे दिल की सल्तनत का। कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। माहम, खुद पर रहम करो थोड़ा। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? साइम के सवाल पर वो उदास हुई। साइम, उसने कहा था कि वो मुझे छोड़ देगा। वो नम लहजे में गोया हुई। तो माहम, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम खुद को खत्म कर लो, अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर दो। मगर मेरी जिंदगी तो वही एक शख्स है, साइम। मेरी जिंदगी का मरकज सिर्फ वही एक शख्स है। मेरी जिंदगी उसी एक मरकज के गिर्द घूमती है। जैसे सूरज, चांद और सितारे अपने अपने दायरों में अपने अपने मरकज के गिर्द घूमते हैं, वैसे ही वो एक इंसान मेरी कुल कायनात है। तो अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगी? हिजर कैसे काटोगी माहम? अभी तो बहुत लंबा सफर है। साइम की बात पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका कलेजा निकाल रहा हो, जैसे जिस्म से रूह को झंझोड़ कर बाहर निकाला जा रहा हो। मैं हिजर नहीं काट सकूंगी साइम, मैं मर जाऊंगी। वो बस इतना ही कह सकी। काट लोगी, तुम भी काट लोगी हिजर, मुझे देखो। मैं भी तो कई सालों से उसका हिजर काट रहा हूँ। महबूब कम बहुत चीज ही ऐसी है, उसका दिया गया हिजर भी लुत्फ देता है। महबूब के हिजर को भी पूरी शान के साथ मनाओ, और मेरे महबूब ने हिजर काटने का हुक्म दिया है। मौत तब आएगी जब अल्लाह की मर्जी होगी। तुम्हारे जितना हौसला नहीं है मेरे पास साइम। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम हराम मौत मर जाओ माहम। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, माहम ने दलील दी। साइम मुस्कुराया। अच्छा मेरी प्यारी मुस्लिम बहन प्लस दोस्त, ये बताओ कि कौन सी सूरा में, कुरान पाक में कहाँ ये बात लिखी हुई है? या फिर चलो कोई हदीस ही सुना दो, ताकि मैं भी हराम मौत मर जाऊं, इससे पहले कि मेरी महबूबा मुझे अपने बच्चों का मामू बना दे। माहम साकित रह गई। वो कुछ पल तो कुछ नहीं बोली। सच में ही ऐसा था। हम अल्लाह के बनाए हुए कानून को क्यों नहीं मानते? हम अपने कानून खुद क्यों बनाते हैं? हम चाहते हैं कि सब हमारी मर्जी से हो, जिसमें हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है। हम उसी कानून को मान लेते हैं, हलाल और हराम की तफरीक किए बगैर। और बेशक इंसान बहुत खुदगर्ज और मतलब परस्त है। माहम को निदामत हुई, वो ठीक कह रहा था। कुछ पल वो कुछ नहीं बोल सकी। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। फिर उसे काफ़ी टाइम पहले पढ़ा गया हज़रत यूसुफ का किस्सा याद आया। मगर साइम, जुलेखा ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत में हद पार कर दी थी। तो तुम जुलेखा से मुतासिर हो माहम? साइम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, फिर खुद ही बात जारी रखी। इंसानों से मुतासिर नहीं होते माहम। मुतासिर कुन ज़ात तो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हाँ, रही बात इंसानों की, तो इंसानों की अच्छी आदतों से मुतासिर हुआ जाता है, ना कि आप उनकी तरह गुमराही की तरफ चल पड़े। मगर साइम, मैं जुलेखा की बात कर रही हूँ। वो धीरे से बोली। एक बार फिर दलील देनी चाहिए। तो माहम, जुलेखा को क्या मिला था? रुसवाई, सिर्फ रुसवाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे साबित हो गए थे। हम लोग जुलेखा की तरह क्यों मोहब्बत में हर हद पार करना चाहते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह क्यों बाकिरदार नहीं बनते? और उनकी तरह अपने रिश्तों से क्यों मोहब्बत नहीं करते? उनकी तरह अपने लोगों को, अपनों को माफ़ क्यों नहीं करते? माहम को साइम की बात ठीक लगी थी, मगर फिर भी वो अपने दिल की आखिरी बात भी क्लियर करना चाहती थी। मगर साइम, ये भी तो देखो कि जुलेखा को आखिरकार उनकी मोहब्बत मिल गई थी। माहम की बात पर वो मुस्कुराया। तो फिर तो तुम्हें भी आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? साइम, यही समझ लो तुम। वो इतना ही बोल सकी। तो क्या तुम जुलेखा की तरह रुसवाई बदनामी बर्दाश्त कर लोगी? क्या तुम जुलेखा की तरह हिजर काट लोगी? सालों इंतजार कर लोगी तुम? नहीं कर सकती माहम, तुम नहीं कर सकती। तुम तो मर जाओगी। साइम की बात पर उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। वो सच ही तो कह रहा था। वो रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही वो हिजर काट सकती थी। मुर्तज़ा की बेरुखी उसकी जान ले लेती है। वो मर जाती मुर्तज़ा के बगैर। वो पल पल मर रही थी।
साइम, मैं क्या करूं, मैं पागल हूं उसके प्यार में, वो बेबसी से बोली। पता है माँ, हम सब की जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो हमारे पीछे पागल होता है, और हम इतने अंधे होते हैं कि हमें उसका पागलपन नजर ही नहीं आता। जैसे यूनिवर्सिटी में हमाद सिद्दीकी तुम्हारे पीछे पागल था, तुम मुर्तज़ा के पीछे पागल हो। मैं उसके पीछे पागल हूँ, उससे मेरा, तुम्हें हमाद सिद्दीकी का और मुर्तज़ा को तुम्हारा पागलपन नज़र नहीं आता। तुम ठीक कहते हो साइम। वो सिर्फ इतना ही बोल सकी, मतलब उसे साइम की बात समझ आ गई थी। साइम धीरे से मुस्कुराया। हैंडसम लड़के हमेशा ठीक ही कहते हैं। साइम ने कॉलर को धा देने वाले अंदाज में पकड़कर हिलाया। माहम ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। अब क्या आपने इस सड़ी हुई स्माइल पर टरकाओगी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अब कॉफ़ी ऑर्डर करो मेरे लिए। तुम्हारे चक्करों में मेरी सारी कॉफ़ी ठंडी हो गई। माहम ने कॉफ़ी का कहा। और हाँ यार, बिल तुम दोगी। क्यों, मैं क्यों दूंगी? कॉफ़ी पर तुमने मुझे बुलाया था। मगर कॉफ़ी तो तुमने पी है माहम, और पहले भी तुमने कहा था कि कॉफ़ी ऑर्डर करो। अब दूसरी बार भी तुमने खुद ऑर्डर की है। कॉफ़ी आ चुकी थी। वो कॉफ़ी का सिप लेने लगा। माहम हैरत से उस इंसान को देख रही थी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह साइम, जैसे पहले तुमने खुद कॉफ़ी ऑर्डर की थी और दूसरी बार भी तुमने खुद कहा कि कॉफ़ी ऑर्डर करो। माहम के जवाब पर वो मुस्कुराया। अच्छा, ये हसीन वाक़या कब रूनुमा हुआ? थोड़ी देर पहले। माहम ने शर्म दिलाना चाही। तुम तो जानती हो यार कि मैं उम्र में तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। अब पहले जैसी याददाश्त कहाँ मेरी। साइम ने अफसोस से बूढ़ी औरतों की तरह अदाकारी की। माहम को बहुत हंसी आई। वो दिल से मुस्कुराई। साइम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माहम ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाय बहन माहम, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी अपनी दोस्त हो। अल्लाह बख्शे मेरी दादी को, बुजुर्ग खातून थी। कहा करती थी कि मेरा पुत्र शर्म ते तेरा की जोड़, शर्म ते तेरा जोड़, इंज जिमें जिमें बदल भरे ते नाल अग भी बल्ले। साइम के इस तरह कहने पर खालिद दादी अम्मा वाले स्टाइल पर माहम को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लगी। वो कहका लगाकर हंसी और फिर हंसती ही चली गई। उफ़ अल्लाह! साइम, तुम भी ना, कसम से यार। वो फिर से हंसने लगी। अब कि उसके पेट में दर्द पड़ गया था, उसने अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए। वो यही तो चाहता था कि वो कुछ देर सब कुछ भूल जाए। वो अक्सर ऐसे जोक सुनाया करता था माहम को। बस करो लड़की, कितना हंसोगी? अगर तुम इसलिए मुझे बातों में लगा रही हो ना कि बिल ना देना पड़े, तो ये तुम्हारी भूल है। साइम से पैसे निकलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है मुझे तुम कितने कंजूस मक्खी-चूस इंसान हो। तुमसे एक ही इंसान पैसे निकलवा सकती है, सिर्फ विशाल। सलाम है उस लड़की को। माहम ने कहकर बैग से पैसे निकाले। अच्छा यार, ये तुम्हारी वॉच में ले रहा हूँ, तुम्हारी निशानी है। संभाल कर रखूंगा। वो इतना कहकर उठा। माहम ने भी पैसे रखे, वो भी उठी। और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रहने दो, हैंडसम लड़के लोमड़ियों से लिफ्ट लेते अच्छे नहीं लगते। वो कहकर भाग गया। साइम बंदर, तुम ऑफिस आओ, मैं तुम्हें सीधा करती हूँ। वो दांत पीस कर रह गई। नई बुहारी से थप्पड़ खाकर अब वो आईने के सामने खड़ा अपना बायां गाल देख रहा था जो कि लाल था। तौबा है डैड, कितना भारी हाथ है आपका। चीकू, तुमने कैसे 2 थप्पड़ खा लिए? मेरी तो एक ही खाकर हिम्मत जवाब दे गई है। तौबा है कसम से मेरी तो। अब जो मैं कभी नईम बुखारी को ब्लैकमेल करने का सोचूं भी तो बस ये आखिरी दफा था, वो भी सिर्फ उसके लिए। आखिरी बार ब्लैकमेल किया है अपने डैड को। ब्लैकमेलर ब्लैकमेलर इर्तिजाउल हसन बुखारी। कोई बात नहीं इर्तिजाउल हसन बुखारी, जायज़ है, सब जायज़ है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वो खुद से बातें कर रहा था। फिर उसने सामने ही बेड पर पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया, जो कि आज वो अपने डैड को ब्लैकमेल करके लेने में कामयाब हो गया था। पासपोर्ट उठाया, पासपोर्ट को बड़ी अकीदत से चूमा, फिर अपने सूटकेस में अपनी ज़रूरत का कुछ सामान और कपड़े रखे और घर से निकल गया बिना किसी को बताए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर किसी को एक मैसेज किया, फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद वो पाकिस्तान से जा चुका था। उसकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। ये एक हफ्ता उसका बहुत उदास गुजरा था। वो इसी रूटीन से जुनी जाती रही। आज शाम को उसका निकाह था। वो किसी का इंतजार कर रही थी। अभी भी वो टेरेस पर खड़ी थी। अपने मोबाइल से किसी को कॉल की, मगर मतलूबा नंबर बंद जा रहा था। पिछले एक हफ्ते से ही ये नंबर बंद जा रहा था। मिशाल को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। पता नहीं उसने उस इंसान पर एतबार करके ठीक फैसला किया था या कि गलत। जो भी था, अब वक्त गुजर गया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो इसी सोचों में थी कि उनके घर के बाहर एक रोल्स रॉयस आ रुकी। मिशाल उस गाड़ी को लाखों में भी पहचान सकती थी। गाड़ी के फ्रंट से उसका मालिक निकला, जबकि साथ का डोर खोलकर वो इंसान निकला जिसका इंतजार मिशाल को था। उस इंसान को देखते ही मिशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दानियाल भाई! वो खुशी से नीचे की तरफ भागी। डोर बेल बजी। साइम ने जल्दी से आकर डोर खोला। सामने ही दानियाल को देखकर उससे लिपट गया। दानियाल, मिस यू यार, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। शुक्र है तू आ गया। वो दानियाल को जोर से खुद में भेज कर बोला। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया हैंडसम लड़के। दानियाल की बात पर वो दानियाल से अलग हुआ। एक मुक्का जोर से दानियाल के कंधे पर मारा। जलील इंसान, इसीलिए कभी मुझे फोन नहीं किया तूने इतने साल। इससे पहले कि दानियाल को जवाब देता, मिशाल भागती हुई आई और दानियाल के गले लगी। भाई आप, थैंक्स गॉड आप आ गए। इतनी देर कर दिया आपने। हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गया, आप कभी नहीं जाऊंगा। वो लोग अभी तक घर के दरवाजे पर खड़े थे। सामने वो इंसान अब मिशाल की खुशी को देख रहा था। फिर गाड़ी स्टार्ट करके वापस चला गया।
دانیال 5 سال بعد آج پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ اٹلی میں ہوتا تھا۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب بہت خوش تھے۔ احمد اپنے پاپا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ مشال اور احمد دانیال کے پاس دائیں اور بائیں طرف دونوں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ہی اس کے سب سے زیادہ لاڈلے تھے۔ بیٹا، پچھلے 10 دن سے ہم پریشان ہیں تمہارے لیے، تم نے کوئی فون بھی نہیں کیا گھر میں۔ اپنی ماما کی بات پر اس نے پہلے مشال کو دیکھا، پھر بولا، ماما میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، یوں اچانک آ کر، اس لیے بات نہیں کی۔ اگر پہلے بتا دیتا تو آپ سب کے چہروں پر یہ خوشی کیسے دیکھتا۔ اور میری بابا سے بات ہو گئی تھی، بابا نے بتایا تھا مشال کے رشتے کا، میری بھی رضا شامل ہے اس میں نے بابا سے کہہ دیا تھا کہ آپ ہاں کر دیں، میں شادی تک آ جاؤں گا۔ مگر بیٹا، تم نے اتنی دیر کر دی، آج مشال کی شادی بھی ہے، اس کی والدہ بولی۔ کوئی بات نہیں ماما، میں آ گیا ہوں نا، ابھی میں سارے انتظام کر دیتا ہوں، ویسے بھی ابھی پورے 7 گھنٹے باقی ہیں شادی میں۔ چلو سائم، آؤ میرے ساتھ، کوئی کام بھی کر لیا کرو ہینڈسم لڑکے۔ دانیال سائم کو اٹھا کر ساتھ لے گیا۔ سب مسکرا رہے تھے۔ مشال نے اپنے بابا کو دیکھا جو بہت خوش تھے، وہ بھی خوش ہوئی۔ گھر کے لون کو سجایا گیا تھا۔ چھوٹا سا لون اب ہر طرف سے رنگوں میں نہا گیا تھا۔ فریش ریڈ اور وائٹ کلر کے پھولوں سے اسٹیج سجا تھا۔ رات کی تاریکی کو رنگ برنگی روشنیاں اب کہیں دور چھوڑ آئی تھیں۔ چھوٹے سے لون میں محض گنتی کے چند ٹیبل لگائے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ دلہے والوں کی طرف سے صرف گنتی کے 10 سے 15 لوگ ہی تھے۔ دلہن کی طرف سے بھی بس کچھ ہی لوگ تھے۔ آج مشال کا نکاح تھا، ساتھ میں رخصتی بھی تھی۔ وہ اپنے روم میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، خود کو دیکھ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ بہت روپ آیا تھا اس پر۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ زارا آئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن۔ وہ کچھ نہ بولی۔ مشال، بارات آ گئی ہے، تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ زارا اتنا کہہ کر چلی گئی۔ وہ جلدی میں تھی، کچھ لینے آئی تھی شاید۔ وہ اب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد اسے منال اور زارا باہر لے آئی۔ اس نے ایک دفعہ بھی اپنے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان پوری شان سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مشال کے بابا سامنے ہی اپنے دوست کے ساتھ گپوں میں مصروف تھے، جو کہ مشال کے سسر تھے۔ ان کے دوست کی ملاقات کافی سالوں بعد ان سے ہوئی تھی، جب وہ کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ مشال سے جب اس کے بابا نے پوچھا تو اس نے ہاں کر دی، اسی لیے شادی ایک ہفتہ بعد ہی جلدی میں ہو گئی۔ جابر والے معاملے کی وجہ سے مشال کے گھر والے جلدی شادی پر مان گئے۔ اس کے بابا بہت خوش تھے۔ مشال کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے رقص کیا۔ ساتھ بیٹھے اس کے شوہر نے یہ منظر دیکھا۔ اسے اپنی بیوی کی ٹھوڑی کا گڑا بہت زیادہ پسند آیا، اوپر سے اس کا جان لیوا حسن۔ وہ انسان دیوانہ ہونے والا تھا بہت جلد اپنی بیوی کا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ سب سے مل کر آخر میں وہ اپنے بابا سے ملی۔ بابا سے ملنے پر وہ بہت روئی۔ اتنے میں سائم نے پھر سے آ کر مشال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مس یو یار، کاش تم لڑکی نہ ہوتی، آج میرے ساتھ ہوتی، تمہیں رخصت ہی نہیں کرنا پڑتا۔ کاش سائم ایسا ہی ہوتا، ہم ہمیشہ ساتھ رہتے۔ مشال بھی مسکرا کر دھیمی آواز میں بولی۔ ان دونوں کی بات صرف دلہا صاحب ہی سن سکے تھے۔ سائم کے اس طرح 2 بار ملنے پر مشال کے پیچھے کھڑے اس کے دلہے کو اس لڑکے پر بہت غصہ آیا، جو کہ اتنا فری ہو رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ، اور اس کی بیوی کی بات بھی اسے انوکھی لگی تھی۔ اب بھلا اپنی شادی والے دن عین رخصتی کے وقت ایسی آرزو کون کرتا ہے؟ بیوی کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سالے کو اب وہ سیدھا کر کے رکھے گا۔ اتنے میں وہ سالہ مطلب سائم دلہے کی طرف آیا، دلہے کو ایک سائڈ سے ہگ کیا اور کان میں بولا، سالہ بھی دوسرا سسر ہوتا ہے، جو کہ دلہے کو بالکل پسند نہیں آیا۔ پھر سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے بارات کی روانگی ہو گئی۔ بارات اپنی منزل کو پہنچ گئی۔ کچھ رسمیں کرنے کے بعد مشال کو اس کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دوپٹے کو اتار کر آرٹیفیشل بنے جوڑے کو کھولا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا۔ اپنے چھوٹے بالوں میں کنگھی کی، خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس طرح دلہن کے لباس میں ملبوس وہ فل تیاری کے ساتھ، اور اوپر سے چھوٹے بال۔ اسے تھوڑا عجیب لگا اپنا آپ۔ دلہن ایسی تو نہیں ہوتی، اس نے دل میں سوچا۔ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر آ جائے اور اسے ایسے عجیب انداز میں دیکھ لے، ہو سکتا ہے مذاق بھی بناتا۔ وہ ساری جویلری اتار کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے آ کر اسے بیڈ کے بالکل پیچھے والی وال پر لگی اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، مشال نے دل میں اعتراف کیا، پھر سر جھٹک کر سو گئی۔ ارتضاء الحسن بخاری اس وقت رات کے 2 بجے ایک قدرے سنسان روڈ پر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے اب سارے منظر یاد آ رہے تھے۔ یہ وہی روڈ تھی جہاں پہلی بار مشال اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، پھر یونیورسٹی میں اسے لڑنا، مشال کا ارتضاء کی شرٹ کو زور سے پکڑنا، سارا والا معاملہ ارتضاء کا، یونیورسٹی سے میں مشال اور جابر کی تصویریں لگانا، پھر جب وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی، اسے مشال کی بات یاد آئی۔ میں تمہیں بہت برا سمجھتی تھی ارتضاء۔ وہ مسکرایا۔ میں برا ہی ہوں پروفیسر، مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ مشال سے دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ پھر اسے ریسٹورنٹ میں اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا، پھر سائم کو مارنا، پھر مشال کا کہنا تم سوری بولو سائم سے، پھر یونیورسٹی میں مشال کا ارتضاء کی باتیں سن لینا، پھر کچھ دن پہلے والی دلچسپ ملاقات۔
सच में आप बहुत प्यारी हैं प्रोफेसर, मुझे आप अच्छी लगती हैं। जैसे सोच कर वो मुस्कुराया। सुबह आपसे बात करूंगा, आपके रूबरू पेश होना है। सुबह पहली पेशी है आपकी अदालत में। फिर इस मुजरिम को जो मर्जी सजा सुना दें आप, अब चाहे वो सजा उम्र कैद हो या फांसी। इतने में जग्गू की आवाज उसे होश की दुनिया में लाई। लोग परेशानी में सिगरेट पीते हैं, आप अजीब इंसान हैं, ज्यादा खुशी में भी सिगरेट ही पीते हैं। तो और क्या करूं, अब क्या शराब पीऊं ताकि तुम जाकर डैड को बता दो और मेरी शामत आ जाए। इर्तिजा कहकर मुस्कुराया। मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर होना चाहिए आपको, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। जग्गू ने सवाल किया। बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा घर जाने को। क्यों? जग्गू हैरान हुआ। क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, घर जाकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जग्गू को उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। अगर साहब जी को पता चल गया कि आप सारी रात घर से बाहर रहे हैं तो? इर्तिजा ने सिगरेट फेंका। आंखें छोटी करते हुए जग्गू को देखा। डैड को कौन बताएगा? नहीं नहीं साहब जी, मैं क्यों बताऊंगा? जग्गू को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो पहले कौन बताता था? इर्तिजा अब जग्गू की तरफ बढ़ा। हाथ में अब पिस्टल था। इर्तिजा के खतरनाक इरादे देखकर जग्गू फौरन वहां से छोटे छोटे कदम लेकर पीछे होने लगा। साथ ही जग्गू की गाड़ी भी खड़ी थी। वो डरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा कत्ल। आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते छोटे साहब। एक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो डरते डरते बोला। तुम्हारे जैसे जासूस इंसान और तुम्हारी जैसी अफलातून इंसानियत मुझे नहीं चाहिए। इर्तिजा ने अब ड्रैगर पर हाथ रखा। जग्गू जल्दी से भागा। अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली, मगर दिल में इर्तिजा से बदला लेने का फैसला किया। अब उसे इर्तिजा की कमजोरी पता चल गई थी। अब वो सारे हिसाब किताब इर्तिजा से बराबर करने का फैसला कर चुका था, जबकि जग्गू की तेजी देखकर वो मुस्कुराया। उसने शुक्र अदा किया कि ये आफत तो उसके सर से टली, मगर उसे क्या पता था कि ये आफत अब नई मुसीबत खड़ी कर देगी इर्तिजा के लिए। वो वहीं खड़ा रहा। अपनी और मिशाल की पहली मुलाकात को सोचता रहा। उसे पहली दफा वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची मालूम हुई थी। उसे क्या पता था कि एक दिन यही बच्ची उस पर अपनी हुक्मरानी कायम कर लेगी। वो सुबह 4 बजे के करीब वहां से घर की जानिब गया। दानियाल सो रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि बारिश आ गई है। वो जल्दी से उठा, मगर सामने उसकी बीवी मनाल हाथ में पानी का जग लिए खड़ी थी और खतरनाक इरादे लिए उसे घूर रही थी। मानो, ये क्या तरीका है? ऐसे कौन करता है? वो जल्दी से बेड से उठा। मनाल बजाय उसके कोई जवाब देती, वो जल्दी से पलटी और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी और सूटकेस में रखने लगी। दानियाल को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या कर रही हो मनाल? कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वो कुछ ना बोली और इसी तरह के बाद दूसरा सूट, अपने कपड़े, अहमर के कपड़े, अपनी चीजें सूटकेस में रखने लगी। दानियाल को गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने इसके हाथ से कपड़े लिए। मनाल, स्टॉप प्लीज, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मनाल ने झटके से उसे गुस्से से दूर धक्का दिया। तुम मुझसे पूछ रहे हो दानियाल, हुआ क्या है? तुम्हें मेरा एहसास ही नहीं है। कल से तुम आए हो, मजाल है जो तुमने मुझसे कोई बात की हो। तुमने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया। वो कहते हुए अब रोने लगी। तुम्हें ना मेरी जरूरत ही नहीं है। पिछले 10 दिन से तुमने मुझे कोई कॉल नहीं की, सिर्फ मिशाल और बाबा से बात की। 10 दिन से मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर जब तुम आए हो, तुमने मेरी तरफ एक नजर देखा भी नहीं। बजाय इसके कि मुझसे बात करते, तुम कमरे में नहीं आए। रुखसती के बाद आके कोई बात नहीं की, मेरे आने से पहले ही सो गए। और कब से सो रहे हो? दिन चढ़ आया है, सुबह के 11 बज रहे हैं। अगर तुम नहीं रहना चाहते ना मेरे साथ, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। वो इतना कहकर फिर से रोने लगी। दानियाल ने उसके आंसू साफ किए, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। तुमसे भी मिलूंगा। बाहर कैसे मिलता, सारे घर वाले थे। मेरा पता है, फिर तुम्हें मेरा मिलने का तरीका, फिर तुम्हें एतराज होता घर वालों के सामने। ऐसे तुमसे मिलता अच्छा थोड़ी लगता। और यार, तुम्हें पता है कितना काम था। सिर्फ मेरे पास 7 घंटे थे, मेरी बहन की शादी थी। कसम से बहुत थका हुआ था, इसीलिए सो गया। तुमने जगा दिया ना, अब मिल लेता हूँ तुमसे। प्लीज, नाराजगी खत्म करो। इससे पहले वो कुछ और कहता, दरवाजा खोल के अहमर कमरे में आ गया। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने इतनी देर कर दी आने में। अहमर आके अपने बाप की गोद में बैठ गया। मेरे बेटे, मैंने भी बहुत मिस किया अपने बेटे को। अब मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, वापस नहीं जाऊंगा। सच पापा? अहमर खुशी से बोला। जी मेरा बच्चा। मामा ने आपका ख्याल रखा या नहीं? मुझे बताएं, मम्मा आपका ख्याल रखती थी? दानियाल ने अहमद से पूछा। नहीं बाबा, मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो मुंह बनाते हुए बोला। क्यों मामा, क्यों ख्याल नहीं रखती? दानियाल ने मनाल की तरफ देखकर सवाल पूछा। बाबा, मामा हर वक्त घर के काम करती रहती हैं, या मुझे कहती हैं होमवर्क करो, ये करो, वो करो। फुप्पो और मामू बहुत अच्छे हैं। वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे पोइम सुनाते हैं, शॉपिंग पे लेके जाते हैं, टॉयज दिलाते हैं। आपको पता है बाबा, फुप्पो और मामू बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुझे पोइम्स पे परफॉर्म करके दिखाते हैं। मामा बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मेरे साथ खेलती भी नहीं है। वो दानियाल को मनाल की शिकायत लगा रहा था, जबकि दानियाल मुस्कुरा रहा था।
آپ کو ماما نے نہیں بتایا کہ آپ کی ماما بھی بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں؟ دانیال شرارت سے منال کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ منال سرخ پڑ گئی، بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ سچ بابا، آپ اور ماما بھی ایسے ہی پرفارم کر کے دکھائیں گے مجھے؟ احمد نے خوشی سے دانیال کو دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ جی میرا بچہ، اب آپ کے پاپا آ گئے ہیں نا، اب دیکھنا کیسے رونق لگاتے ہیں۔ آپ کی پھپھو کی کمی ہم آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ چلو باہر چلتے ہیں ماما کے پاس۔ وہ اسی ہولیے میں احمد کو اٹھا کے باہر آ گیا۔ مشال کی صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو سب سے پہلے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسے آس پاس دیکھا تو اس کے دوسری طرف اس کا شوہر سو رہا تھا۔ چہرہ دوسری جانب تھا، وہ کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ مشال کو تھوڑا ڈر لگا اس انسان سے، جانے کیسا سلوک کرے گا وہ مشال سے۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، فریش ہو کر ہلکے کام والی میرون کلر کی فراک پہن لی، اپنے چھوٹے بالوں میں کنگھی کی، ہلکا سا میک اپ کیا، خود کو آئینے میں دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باب ہیئر کٹ اس پر بہت سوٹ کرتا تھا۔ پھر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اسے اس کا شوہر نظر آ رہا تھا، نیچے اس کے پاؤں میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے رات کو سوتے وقت سارے پھول دوسری طرف بیٹھ کے دوسری طرف کر دیے تھے، جبکہ شاید اس کے شوہر نے سوتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹا کر نیچے زمین پر پھینک دیے تھے۔ مشال نے اٹھ کر سارے پھول اکٹھے کر کے پاس ہی ٹیبل پر رکھ دیے اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بڑے سے روم میں بیڈ پر وہ انسان اپنی پوری وجاہت سمیت نیند کے مزے لے رہا تھا، جبکہ سامنے ہی ڈریسنگ تھا۔ مشال اٹھ کے ڈریسنگ کے پاس گئی، اس کے شوہر کی پرفیومز رکھی ہوئی تھیں اور طرح طرح کی برانڈ کی رسٹ واچ رکھی گئی تھی، جبکہ بیڈ کی دائیں طرف صوفہ تھا، صوفے کے آگے چھوٹی سی ٹیبل، بائیں طرف ایک اسٹڈی ٹیبل تھا جس کے اوپر کچھ کتابیں رکھی تھیں، اس کے ساتھ ایک نوٹ بک تھی۔ مشال چل کر پاس آئی، چیئر پیچھے کر کے اس چیئر پر بیٹھی اور نوٹ بک جو کہ کھلی ہوئی تھی پہلے سے ہاتھ میں لے لی۔ نوٹ بک کے پہلے پیج پہ اس کے شوہر کے نام کے نیچے ایک شعر لکھا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ محبت مجھے تم سے آپ پر لے آئی بقول کے۔ کچھ پل وہ اسی لائن کو پڑھتی رہی۔ مشال کو حیرت ہوئی، نیچے لکھا تھا کہ پی ایم، کمال ہے، یہ سڑیل انسان شاعری بھی لکھ سکتا ہے۔ پھر نظر پیچھے اس انسان پر ڈالی، وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر چل کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا، وہ پہلے کی طرح اب تک سو رہا تھا۔ وہ انسان شاید بہت سکون کی نیند سو رہا تھا، نہ صرف گدھے گھوڑے بلکہ ہاتھی بھی بیچ کر سو رہا تھا۔ مشال کو تو ایسا ہی لگا، وہ سارے روم کا جائزہ لے چکی تھی، اب کوئی کام نہیں تھا جو وہ کرتی۔ پھر سوچا گھر میں فون کر لے، یہی سوچ کر اپنا فون ڈھونڈنا چاہا، مگر شاید وہ اپنا فون اپنے روم میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ پھر اپنے شوہر کا فون ڈھونڈنا چاہا جو کہ ساتھ ہی بیڈ پر پڑا تھا، پھر اٹھا لیا، فون اٹھا کر ساتھ ہی بالکنی میں چلی آئی، کچھ دیر اپنے بابا سے بات کی، پھر واپس آ کر فون رکھ دیا، مگر وہ انسان ابھی تک ویسے ہی سو رہا تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر روم میں ٹہلنے لگی۔ اب سامنے وال کلاک پر سوئی 10 کے ہندسے کو عبور کرنے والی تھی، وہ بار بار روم میں چکر لگا رہی تھی، مگر سوئے ہوئے انسان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ڈور ناک ہوا، مشال نے ڈور کھولا تو سامنے اس کی ساس کھڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ روم میں چلی آئی۔ یہ نالائق ابھی تک سو رہا ہے، تم نے اٹھایا نہیں اسے؟ یہ بہت سوتا ہے بیٹا، اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب بھی میں ہی اسے روز صبح آ کر بڑی مشکل سے اٹھاتی ہوں۔ تمہارے بس کا کام نہیں ہے بیٹا، میں خود اٹھاتی ہوں اس نالائق کو۔ وہ اب اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ اٹھو بیٹا، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کب تک سوتے رہو گے؟ تمہارے ڈیڈ بلا رہے ہیں، وہ اس کو کندھے سے ہلاتے ہوئے بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اس کی موم نے کمبل کھینچا، اب اٹھ بھی جاؤ، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ پھر اس کی موم نے اب کی بار قدرے زور سے بازو ہلایا، اب اٹھ بھی جاؤ، اپنے ڈیڈ سے مار کھانی ہے کیا؟ یار موم سونے دینا، ابھی صبح 4 بجے ہی تو سویا تھا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، تمہاری بیوی کا پہلا دن ہے آج، کچھ تو عقل کرو، اس کو اپنے ساتھ نیچے لے کر آؤ ناشتے پر، تمہارے ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ ذرا دھیمی آواز میں بولی، مشال کی وجہ سے، مگر ان کے بیٹے نے اب کی بار اپنا شاندار جواب دے کر مشال کو سنا دیا تھا کہ اس کی موم نے کیا کہا تھا۔ کون سی بیوی؟ میری کوئی بیوی نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کو بتا دیں کہ میں سو رہا ہوں۔ اس نے اب کہہ کر تکیہ منہ میں دے لیا، وہ شرمندہ ہوئی، پھر مشال کے پاس آئی۔ بیٹا یہ نالائق ایسا ہی ہے، نیند میں اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تم چلو آؤ، ہم چل کر ناشتہ کرتے ہیں، تمہارے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ مشال نے غصے سے جاتے ہوئے پلٹ کر اس انسان کی پشت کو گھورا، دل کیا کوئی چیز اٹھا کر اس انسان کو مار دے۔ اس کی ساس اب روم سے باہر نکل گئی تھی۔ مشال نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور جلدی سے ہیئر برش اٹھا کر سوئے ہوئے انسان کی پشت پر مارا اور اس کا ری ایکشن دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی، پھر اپنی ساس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ ارتضاء الحسن بخاری مزے سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا، اسے ایسا لگا کہ مشال اس کے پاس آ رہی ہے۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی، اب اسے جگا رہی تھی، اب اسے ایسا لگا کہ وہ اس کا گال تھپتھپا رہی ہے۔ ارتضاء کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو جانو؟ اسے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ نہیں نا، ہاتھ پیچھے مت کریں۔ ارتضاء نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا۔ مگر جانو، اسے مشال کی آواز آئی،
कसम से आपके मुँह से कितना अच्छा लगता है जब आप मुझे जानू कहती हैं। वो सोते हुए मुस्कुराया। उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रख लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अपने दिल की धड़कन सुना रहा हूँ जो आपका नाम लेती है। मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाय इर्तिजा, इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बहुत ज्यादा प्रोफेसर साहिबा। इर्तिजा मुस्कुराया। फिर गुस्से में क्यों रहते हो हर वक्त जानू? आप मेरी तरफ देखती जो नहीं है प्यार से, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। इर्तिजा ने शिकायत की। मगर अब तो मैं तुम्हारे पास हूं ना इर्तिजा जानू, मेरे पास रहा करें। मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। इर्तिजा ने उसका हाथ अब अपने दिल से उठाकर अपने लबों की तरफ बढ़ाया, मगर उसने हाथ पीछे खींच लिया। जोर से हाथ पीछे खींचकर उसने इर्तिजा को एक जोर से मुक्का उसके पेट पर मारा। इर्तिजा होश में आया। बदतमीज टर्की इंसान, कोई तो लिहाज कर ले कि मैं तेरा साला हूँ। तुझे उठाने आया था और तू मेरे साथ ही शुरू हो गया। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। साइम ने कानों को हाथ लगाकर फुल ड्रामाई अंदाज में कहा। इर्तिजा जल्दी से उठा। अब नींद गायब हो चुकी थी। सामने ही ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने साइम खड़ा था। इर्तिजा ने उठकर साइम को एक जोर का मुक्का मारा। तुझे किसने कहा था कि सुबह सुबह मेरे रूम में आकर मुझे जगाना शुरू कर दे? साइम ने अपने कंधे पर हाथ रखा। आह जालिम इंसान, तेरी बीवी ने कहा था कि जाकर तुम्हें उठा दूं, तो सीधी तरह कहता ना, ये जानू जानू किस खुशी में लगा रखी थी। इर्तिजा ने अब बेड पर पड़ा हेयर ब्रश उठाया। उसे अब याद आया था कि उसे सोते हुए ऐसा लगा था कि उसे किसी ने कुछ उठाकर मारा है। मैं जीजू कह रहा था, तुमने खुद ही जानू समझ लिया। साइम ने शरारत से कहा। इर्तिजा पहले शर्मिंदा हुआ, फिर गुस्से वाले तासुरात से साइम को देखा। अपनी बीवी की वजह से मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना इर्तिजाउल हसन बुखारी इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, मगर मैं तो तुम्हारा साला हूँ। अब तुम्हें मुझे बर्दाश्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी मिशाल मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी हर बात मानती है वो। मैं कुछ भी कह सकता हूँ तुम्हारे खिलाफ। वो आंखें बंद करके यकीन करती है मुझ पर। साइम ने फातिहाना अंदाज में कहा। इर्तिजा को गुस्सा आया। इर्तिजा ने साइम का गिरबान पकड़ लिया। साले हो, साले बंद कर रहो, मेरा ससुर बनने की कोशिश मत करो। इर्तिजा की बात पर वो मुस्कुराया, फिर अपना गिरबान उसके हाथ से निकाला। साला भी आधा ससुर ही होता है। फिर साइम ने पास बेड पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया। जानू, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साइम प्यार से इर्तिजा का गाल थपथपाकर चला गया। इर्तिजा को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। साला कमीना। मोहब्बत भी क्या चीज़ है इर्तिजाउल हसन बुखारी। कैसे कैसे लंगूरों को बर्दाश्त करना पड़ता है महबूब की खातिर। वो इतना कहते हुए वॉशरूम में चला गया। इर्तिजा जब नीचे आया तो उसके घर वालों के अलावा साइम, ज़ारा और मुमताज़ बेगम भी वहाँ थी। सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। साथ साथ बातों की आवाज़ आ रही थी। मिशाल और साइम साथ बैठे थे। वो साइम की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वो आकर मिशाल के बाएं तरफ बैठ गया। दाएं हाथ पर साइम बैठा था। इर्तिजा ने सबको सलाम किया। नईम बुखारी ने उसे घूरा, मगर उसे परवाह कहाँ थी। साइम के साथ ही माहम भी बैठी थी। वो दोनों से गपशप लगा रहा था। सामने बैठा इर्तिजा और बिल्कुल सामने बैठा मुर्तजा दोनों ही साइम को कहा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। ये एक इंसान इन दोनों को अपना रकीब लगता था। नाश्ते के कुछ देर बाद वो लोग चले गए। इर्तिजा, तुम शाम को मिशाल बेटी को उसके घर ले जाना, नेम साहब ने कहा। इर्तिजा ने एक नज़र मिशाल पर डाली। ओके डैड। फिर इर्तिजा उठकर अपने रूम में चला गया। मुर्तजा, तुम कल से अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, नईम साहब ने मुर्तजा से कहा। जी डैड, वो इतना ही बोला। माँ मिशाल को अपने साथ ले गई अपने रूम में। इर्तिजा रूम में उसका इंतजार करता रहा, मगर वो माहम के साथ ही रही। वो रूम में आई ही नहीं। फिर तंग आकर वो घर से बाहर निकल आया। शाम को ज़ेबा बेगम ने आकर मिशाल से कहा कि तैयार हो जाओ, इर्तिजा आता ही होगा, फिर तुम्हें ले जाएगा। वो शाम को अपने रूम में आई, चेंज किया, अब ग्रीन कलर का हल्के काम वाला ड्रेस पहन लिया, हल्का सा मेकअप किया, फिर दुपट्टा गले में डाल लिया। मगर खुद को आईने में देखकर उसे इस तरह थोड़ा अजीब लगा। यूनी में वो ऐसे ही दुपट्टा गले में डाला करती थी, मगर तब ऊपर टीचिंग गाउन हुआ करता था। अब खोल कर दुपट्टा शानों पर फैला लिया। उसका इरादा अभी रूम से जाने का था जब डोर खोलकर इर्तिजा अंदर दाखिल हुआ। विशाल को अपनी सुबह वाली हरकत याद आई, फिर उस पर साथ ही गुस्सा भी आया। वो अब डोर के पास ही खड़ा उसे देख रहा था। मिशाल ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो मुस्कुराया, फिर उसके पीछे वो भी ड्रेसिंग रूम में चला आया। अब अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। इर्तिजा भी अपने कपड़े लेकर आया और वॉशरूम में शॉवर लेने चला गया। वो सोफे पर बैठ गई, उसका इंतजार करने लगी। वो शॉवर लेकर निकला, गीला टॉवल बेड पर उछाला। अब वो बहुत आराम से आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। कभी हेयर स्टाइल बनाता, कभी खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता। उसे 20 मिनट हो गए थे। बार बार खुद को आईने में देखता। फिर कोई कमी नजर आती, फिर ठीक करता। फिर शूज पहने और जो जूते उसने उतारे थे उसी तरह टांग मारकर बेड के नीचे कर दिए। फिर से वॉशरूम में चला गया, हाथ धो कर आया। अब वो अपनी कलाई पर वॉच बांध रहा था। वॉच बांधकर फिर खुद को आईने में देखा, मगर उसे शायद ये वॉच पसंद नहीं आई थी। फिर सर को नफी में हिलाया, फिर दूसरी वॉच ट्राई की, फिर ऐसा ही हुआ, फिर वो भी उतार दी। मिशाल उसे ही देख रही थी। मिशाल को इस इंसान पर गुस्सा आ रहा था। इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती जितने वो करता था। मिशाल खुद भी लड़की होकर सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो चुकी थी।
और वो था कि पिछले 30 मिनट से खुद को लड़कियों की तरह घूम-घूम कर तनकीदी नज़रों से देख रहा था। अब कि विशाल के सब्र की इंतहा हो गई थी। वो अपनी जगह से उठी, सामने रखी हुई एक वॉच उठाकर उसके हाथ में ज़ोर से थमाई। "ये पहनो और जल्दी करो।" वो गुस्से से बोली और बाहर की तरफ बढ़ी। इर्तिज़ा मुस्कुराया, फिर वॉच बाँधता हुआ रूम से उसके पीछे निकल गया। सारा रास्ता खामोशी से गुज़रा, दोनों ने कोई बात ना की। मिशाल अपने दाएँ हाथ की उँगलियों को मुट्ठी की शक्ल में बंद किए अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर टिकाए बैठी रही। इर्तिज़ा ड्राइव के दौरान बार-बार एक नज़र उस पर डाल लेता, मगर वो उसी पोज़ीशन में रही। इर्तिज़ा को उसका ये स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसकी वज़ह से उसकी ठोड़ी का गड़ा छुप गया था। थोड़ी देर बाद बार-बार उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए देख कर विशाल ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। अभी सॉन्ग स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि इर्तिज़ा ने साथ ही बंद कर दिया। विशाल ने गुस्से से दिल में इर्तिज़ा को बदतमीज़ के इल्क़ाब से नवाज़ा। इर्तिज़ा ने उसके फ़ेस के एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो गुस्से में है। उसने फिर से हाथ उसी पोज़ीशन में अपनी ठोड़ी पर रख लिया। "मुझे ड्राइव के दौरान म्यूज़िक पसंद नहीं।" इर्तिज़ा ने बात का आगाज़ किया। वो कुछ न बोली। फिर मिशाल के घर भी इर्तिज़ा और मिशाल की कोई बात ना हुई। इर्तिज़ा सारा वक़्त दानियाल और शुजा साहब के साथ बैठा रहा। बाकी सब भी उसके पास वक़्फ़े-वक़्फ़े से आते रहे, मगर वो साइम के साथ ऊपर चली गई थी। फिर वो डिनर के टाइम दोनों नीचे आए थे। मिशाल को अपनी वालिदा से थोड़ी बहुत डाँट भी पड़ गई थी, जिस पर वो इर्तिज़ा के सामने अपनी बेइज़्ज़ती पर बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि वो मिशाल की इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर बहुत महज़ूज़ हुआ था। मिशाल ने उसके फेस एक्सप्रेशंस देख लिए थे। फिर डिनर के बाद वो वापस आ गए। अपने रूम में वापस आकर वो चेंज करने के बाद आईने के सामने खड़ी अपने छोटे बालों में कंघी कर रही थी। जब वो रूम में आया, बेड पर बैठकर विशाल को देखने लगा। विशाल अब तंग आ चुकी थी उसकी नज़रों से। गाड़ी में वापसी पर भी वो हर थोड़ी देर बाद एक निगाह उस पर डाल लेता। फिर वो पलटी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इससे पहले कि वो इर्तिज़ा की अकल ठिकाने लगाती, इर्तिज़ा ने खुद ही बात का आगाज़ किया। "बात सुनिए प्रोफ़ेसर साहिबा, बोलो क्या मसला है?" गुस्से में मगर कदरे धीमी आवाज़ में बोली। वो बेड से उठा, मिशाल के सामने आया। "मैं जानता हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। आप इस रूम के अंदर जैसे मर्ज़ी मुझसे बात करें, मगर मेरी मॉम के सामने थोड़ी तमीज़ से मुझसे बात कर लेना प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।" "और मैंने कब की है तुमसे बदतमीज़ी तुम्हारे घर वालों के सामने? बताना ज़रा।" विशाल को तो सदमा हुआ। "नहीं की आपने मगर।" "क्या मगर? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बदतमीज़ हूँ?" वो गुस्से में अब ज़रा ऊँची आवाज़ में बोली। उसका ठोड़ी का गड़ा मज़ीद गहरा हुआ। "नहीं, मैं आपको बस समझा रहा था।" "तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं नासमझ हूँ?" "नहीं, मैं बस आपको बता रहा था।" इर्तिज़ा ने बेबसी से जवाब दिया। "अच्छा, अब तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे?" वो मज़ीद गुस्से में बोली। "ओके, ओके, रिलैक्स प्रोफ़ेसर साहिबा। मैं आपको कुछ नहीं कहता। भला मैं कौन होता हूँ आपको तमीज़ सिखाने वाला? आप प्रोफ़ेसर जो हैं।" इर्तिज़ा ने हार मानते हुए उसे शानों से थामा। मिशाल ने उसे देखा। "मैं तुम्हारी प्रोफ़ेसर हूँ इर्तिज़ा, ये बात हमेशा याद रखना।" वो इर्तिज़ा को देख कर बोली। वो अभी वैसे ही उसे दोनों शानों से थाम कर खड़ा था। "ओके प्रोफ़ेसर साहिबा, जैसी आपकी मर्ज़ी।" वो ताबेदारी से कहता हुआ अब उससे दूर हुआ और रूम से चला गया। पीछे मिशाल मुस्कुरा दी। पहले वो खुद इर्तिज़ा से डर रही थी। उसे लगा था कि ये इंसान बहुत मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर अब खुद हिम्मत करके उसे इर्तिज़ा से बात कर ही ली थी, या फिर दूसरे अल्फ़ाज़ में इर्तिज़ा उल हसन बुखारी को आगे लगा लिया था। उसने अब इर्तिज़ा पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। अब उसे जग्गू की बात सच लगी थी। जग्गू ने उसे शादी की रात वाली सारी बातें बता दी थीं। अब उसे इर्तिज़ा पर बहुत गुस्सा था। वो अब उस इंसान को सबक सिखाने का इरादा कर चुकी थी।